Hello friends, I'm Lieutenant Colonel Ganesh Babu. In my previous video titled Basics of Psychological Testing, I have told you that in the psychological test there are 4 tests: TAT, WAT, SRT and SD in the same sequence, and the total marks for the psychologist is 225 marks. And if you remember, I've also told you that in terms of assessment weightage, TAT constitute the highest assessment weightage, that is 70%. Rest WAT, SRT, SD including PIQ forms 10, 10, 10 each. So TAT forms a major component in the entire psychological test battery. So that I've already conveyed. Now through this series of videos, I'll tell you certain TAT secrets or maybe the mistakes that you do which you must avoid so that you improve your performance. I'll make a series of videos in this, and each one will convey one aspect that you need to take care, and you must comment and tell me have you got what I want to tell you, because उसी से आपके अंदर वो correction होगा. I have been requested to make shorter videos of covering only one aspect at one time because of reduced attention span. Anyway, I'll do that. So let's take the part 1, TAT secrets revealed. Right now, for example, you all know that in the TAT 12 pictures are shown. Each picture remains before you for 30 seconds to observe. Thereafter you get 4 minutes to write a story on that, and the story has to be written in 3 parts. What led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome, right? So when this picture is shown to a candidate, look at this picture. This picture has to be observed first using our eyes. So observational skill becomes critical. Only then you will be able to take this picture from the world outside to the world inside. So first step is to observe this picture carefully and in detail, and to do this you get exactly 30 seconds. So I want you to observe this picture for 30 seconds. You get exactly 30 seconds to observe. There's a difference between seeing the picture and observing the picture. मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना what is the difference between seeing the picture and observing the picture. You are expected to observe the picture. So having done that, now the eyes will take this picture into your brain where the further processing will happen, and the first step in that is the perception, that is making meaning out of this picture. So this picture is observed using your eyes and is fed to the brain where further processing happens. The next step is perception. So मुझे comment में बताना what do you mean by perception and what are distortions in perception. Perceptual distortion होने से किस तरह से आपके थिंकिंग में वो असर करता है, ये भी जरूर लिख के बताना. सो ये पिक्चर आंखों से ऑब्जर्व हुआ, ब्रेन तक पहुंच गया. नाउ इसके बाद होता है ब्रेन के अंदर इंटरनल मेंटल प्रोसेस, जिसे कि मानसा भी कहते हैं. इसको लेके आपने पूरा का पूरा स्टोरी को बिल्ड करा, और आपको पता है साइकोलॉजिस्ट आपसे 3 सवाल पूछता है. व्हाट लेड टू द सिचुएशन, what is currently happening, and what is the final outcome. Now so observation, perception, उसके बाद ये पूरा built up होता है आपके अंदर, और नेक्स्ट स्टेज में आप इसको एक रेस्पॉन्स के फॉर्म में इस इंटरनल मेंटल प्रोसेस को लिख के देते हो साइकोलॉजिस्ट को कागज में. तो साइकोलॉजिस्ट ने आपको स्टिमुलस दिया और आपने प्रोसेसिंग के बाद लिख कर रेस्पॉन्स दिया. So there has to be a congruence between the stimulus presented and the response given. ये क्या स्टेटमेंट बोला, इसको मैं आगे एक एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, जब इसी पिक्चर को एक कैंडिडेट को दिया तो उस कैंडिडेट ने एक स्टोरी लिखा है, तो मैं उस स्टोरी को पढ़ूंगा, उसके बाद वी विल डिस्कस इट फर्दर. So the candidate writes, now first of all this candidate is a CDS candidate, 23 साल का, 22-23 साल का लड़का है. He says, Rajat is a 26-year-old boy. When he was going to his college, he saw a woman in her late 20s crying, and he went to
comfort her. He got to know that while returning from Bihar, the lady had forgot her luggage in the government transport bus and is also and it also contained important documents for her job. He then contacted the in charge of the government bus station, told him about the problem, and the in charge of the station then called the bus driver and the lady got her luggage back. So एक स्टोरी है जिसमें एक लेडी है, उसका नाम नहीं लिखा, वो अपना लगेज को गवर्नमेंट बस में छोड़ देती है गलती से, जिसके कारण वो रो रही होती है। रजत 26 साल का लड़का कॉलेज जा रहा होता है, वो उस लेडी को देखता है और उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो पूरी घटना को बताता है और बताती है, और साथ में ये भी बताती है कि उस बैग में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे जो कि उसके जॉब के लिए रिक्वायर्ड था। फिर रजत जो है गवर्नमेंट बस स्टेशन के इंचार्ज को कांटेक्ट करता है और पूरी घटना को बताता है, और उसने फिर बस ड्राइवर को कांटेक्ट किया जिसके माध्यम से वो बैग वापस मिल गया। तो ये स्टोरी है। इससे पहले मैं आगे बोलूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसा लगा स्टोरी। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, देयर हैज टू बी ए कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द स्टिमुलस प्रेजेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड द रिस्पॉन्स गिवन बाय द कैंडिडेट। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया, और क्या ये स्टेटमेंट इस स्टोरी के ऊपर और इस पिक्चर के ऊपर बैठ रहा है या कुछ गड़बड़ हुआ है? कमेंट लिख के बताना, उसी के बाद आगे जाना। पॉज कर लो, कमेंट लिखो। ओके, नाउ ये था पिक्चर जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया, ये था पिक्चर जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया, और ये था रिस्पॉन्स जो कैंडिडेट ने दिया, है ना। एंड इस स्टोरी को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ये स्टोरी इस दिए हुए पिक्चर या स्टिमुलस पे नहीं लिखा है, किसी और ही पिक्चर पे लिखा है, और इस स्टोरी के आधार पर अगर मैं पिक्चर को रिक्रिएट करूं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। एक बस स्टैंड है जहां पे एक लड़की रो रही है और एक बंदा है जो उसको कंफर्ट कर रहा है, व्हाटएवर। दिस इज द स्टोरी। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या दिया हुआ पिक्चर और पिक्चर के बेस पे जो रिस्पॉन्स लिखा है, क्या वो दोनों में जुड़ाव है? एक बार वो सेम स्टेटमेंट को तो रिपीट करता हूं, देयर हैज टू बी अ कॉन्ग्रुएंस और कंसिस्टेंसी बिटवीन द स्टिमुलस presented by the psychologist and the response given by the candidate। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या दिया हुआ पिक्चर और कैंडिडेट द्वारा लिखा हुआ स्टोरी के अंदर जुड़ाव है? क्या ये जो दोनों पिक्चर फ्लैश हो रहा है, क्या वो सेम है? अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो लिख के बताना क्या गड़बड़ हुआ है। क्या ये दोनों पिक्चर सेम है? क्या फर्क है पहले पिक्चर में और दूसरे पिक्चर में? क्या फर्क है? दोनों में लड़की रो रही है, दोनों में एक लड़का उसको कंफर्ट कर रहा है। क्या गलती हुआ है? अगर हुआ है तो, और अगर नहीं हुआ तो बताना क्या हुआ। There has to be a consistency between the stimulus presented by the psychologist and the response given by the candidate। इसे नोट कर लो और इसे कमेंट में बताना इससे क्या समझ में आया। कुछ डाउट हो तो पूछना, मैं उसको अगले वीडियोस में इसको और क्लियर करूंगा। सो मेरा सवाल है, क्या फर्स्ट पिक्चर और सेकंड पिक्चर दोनों सेम है? सेकंड पिक्चर में बस स्टॉप है, लड़की रो रही है, कहानी के आधार पर सेकंड पिक्चर ज़्यादा मेल खा रहा है, लेकिन फर्स्ट पिक्चर तो लड़की पार्क में खड़ी है, लड़का कॉलेज जा रहा है, अनजान लड़की को हाथ लगा रहा है
अनजान लड़की को कैसे हाथ लगाएगा? और वो भी अगर बस स्टैंड पे बैग गुम हुआ है तो पार्क में कैसे आ गई? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, तो मुझे बताना क्या इसके अंदर मिलाप है? मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर को उस बंदे ने पार्शली ऑब्जर्व किया है, आधा अधूरा ऑब्जर्व किया है, बाकी मन घड़त गढ़ दिया है। और ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वॉट एवर इज इनसाइड विल कम आउट. So I don't find there is a consistency in the stimulus presented by the psychologist and the response given by the candidate. कमेंट लिख के बताना. और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जो L2 है बुद्धि, उसमें क्या तर्क पर आपने इस प्रकार स्टोरी लिखा कि पार्क में रोती हुई लड़की को आपने बस स्टैंड में रोती हुई लड़की बना दिया और एक अनजान लड़का आके उसको हाथ लगा दिया? बहुत सारी चीजें हैं जो जवाब के सवाल के घेरे में आता है कि लड़की अगर बस स्टैंड पे बैग गुम हुआ या बैग छोड़ दिया तो पार्क में आके क्यों रो रही है? वहीं वो जाके पूछ लेती कि सर वो बस में छूट गया, मेरा बैग मिल सकता है, क्या करना है? Why was she crying in the park? ये अनजान लड़का कॉलेज जा रहा था हाथ खाली हाथ, फॉर्मल ड्रेस पहन के, और अनजान लड़की को आके हाथ लगा लेता है. इस एक्शन से आपके L3 इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में क्या बात करता है, क्या बताता है, क्या दर्शाता है? आपका लॉजिक या आपकी रीजनिंग कहाँ चली गई? अगर आप इसको OLQ की भाषा में देखो तो फैक्टर 1 की क्वालिटी इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल एडजस्टमेंट में सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फैक्टर 3 में इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. फैक्टर 4 में डिटर्मिनेशन, करेज, मेंटल स्टैमिना. आपके इस तरह से इस पिक्चर को, दिए हुए स्टिमुलस को ही पलट देना, उसके बैकग्राउंड को, उसकी पृष्ठभूमि को पूरा ही पलट दो. तो इन टर्म्स ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटी, किन क्वालिटी का आपने मैनिफेस्टेशन किया है? क्या आपके फैक्टर 1 इसमें हाई आ रहा है, लो आ रहा है? अनजान लड़की को टच कर रहे हो फिजिकली, इससे आपका फैक्टर 2 की क्वालिटीज हाई आ रहा है, लो आ रहा है? सोशल इंटेलिजेंस, लड़की जिसने पार्क में गुम हुआ, बस स्टैंड में गुम हुआ बैग, वो पार्क में आकर रो रही है, लड़की का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहाँ चला गया? सो बहुत सारी चीज़ों के मुझे जवाब चाहिए, आप इसमें लिख के बताओगे. इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज क्या दिख रहा है, ये लड़के ने ऐसा क्यों किया? और मेरा एक और सवाल आपसे है जिसको कि आप सोच समझ कर जवाब देना. क्यों एक लड़का, बाय द वे ये लड़का 2 बार SSB गया हुआ और 1 बार कहीं और से भी कोचिंग लिया, उसके बाद ये मेरे पास ऑनलाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के लिए आया था. तो मेरा आपसे सवाल है कि किस कारण ये इनकंसिस्टेंसी आया है बिटवीन द स्टिमुलस प्रेजेंटेड एंड द रिस्पॉन्स रिटन बाय द कैंडिडेट? इसके पीछे किस लेवल पे गलती हुआ? क्या आंखों के लेवल पे गलती हुआ, क्या बुद्धि के लेवल पे गलती हुआ, या किसी कोचिंग के इनपुट ने आपके बुद्धि में परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन लेके आ गए, उसके कारण हुआ? जरूर कमेंट लेके बताना. और फिर उसके बाद अगर आपका कमेंट सही लगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा हुआ क्या, एंड देन दिस हैज टू बी करेक्टेड. अगर आप सीरियस SSB एस्पिरेंट हो तो क्या ये करेक्शन पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है ना? सो इसके बारे में और डिटेल में जानना हो तो एक अभी SSB का 25 डेज का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कल बैच हुआ है. आज से आप ज्वाइन कर सकते हो. जो मिसिंग है वो कवर कर लिया जाएगा और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी दे दिया जाएगा उसका, प्लस फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा. और उसका जब डिस्कशन होगा तो इस तरह के बहुत सारे सीक्रेट्स दैट नीड्स टू बी करेक्टेड वो आपको पता चल जाएगा. 500% क्लैरिटी है ना. सो वन ऑन सोल्यूशन, इट विल बी अ कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन. अगर आप आइकॉनिक बैच में ज्वाइन करते हो तो आप मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो और आपको एक्सक्लूसिव फीडबैक मिलेगा. 25 प्लस लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग मिलेगा इसको, और डाउट क्लियरिंग सेशन. इनफैक्ट डाउट तो आएगा ही नहीं क्योंकि मैं 500% क्लैरिटी एश्योरेंस दे रहा हूँ, 500
person. So you're most welcome to register. इसके अलावा अगर आप NDA and CDS 2024 या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी करंटली बैचेस आर ओपन एंड इसके अंदर फ्लैट 30% डिस्काउंट है जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए है और जो भी इस बैच को ज्वाइन करेगा उसको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी एक्सटेंड करके मिलेगा. इनफैक्ट ये 30% का ऑफर एसएसबी वाले उस प्रोग्राम में भी है. तो इसके लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डिटेल्स चाहिए तो आप इस अनअकैडमी की हेल्पलाइन में कांटेक्ट कर सकते हो 8585858585 पर एंड यू विल बी असिस्टेड इन टर्म्स ऑफ your doubts being clarified and also assistance in terms of registering for the batch both for the SSB as well as for the return. इसके अलावा जो लोग प्लस कैटेगरी में रजिस्टर नहीं करना चाहते आप अपना रिस्पॉन्स को इस पिक्चर के आधार पर YouTube के कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हो और उसको हम अगले फ्री लाइव क्लासेस में लेंगे. यहाँ पे हम इसको कोशिश करेंगे कुछ लोगों का डिस्कशन करने का और फ्री लाइव क्लासेस का इस तरह का होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. इसमें भी अगर आपको किसी भी प्रकार का असिस्टेंस चाहिए यू कैन गो एंड कॉल ऑन द सेम नंबर एंड दे विल असिस्ट यू विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो डू पोस्ट योर कमेंट्स एंड डू पोस्ट योर स्टोरी ऑन दैट. इसके अलावा यू कैन ज्वाइन ऑन द अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे. इस टेलीग्राम चैनल पे जो रिटर्न का और एसएसबी का स्टडी मटेरियल को PDF शेयर किया जाएगा. You can go there and download for your personal use and do share it with the friends so that they also benefit. जरूर इस वीडियो पे कमेंट लिख के मुझे बताना इस वीडियो से क्या समझ में आया. इसके अलावा मैं आप लोगों से एक सवाल और पूछता हूँ कि हमने अभी ये TAT का एक स्टोरी देखा और उसमें हमने देखा कुछ गड़बड़ भी हुआ है. सो मैं जानना चाहता हूँ थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में ये जो वर्ड है अपरसेप्शन इसका मीनिंग क्या है. What is the difference between perception and apperception? And how does a perception gets corrupted जब हम wrong तरीके से कोचिंग करते हैं बी पॉजिटिव डेड बॉडी का ड्रामा बना दो ये सब जब करते हैं तो किस तरह से a perception डिस्टॉर्ट होता है. इसके ऊपर जरूर कमेंट लिखना. अगर आपके कमेंट्स अच्छे आए तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. What do you mean by a perception in the TAT और ये कैसे डिस्टॉर्ट होता है या करप्ट होता है बिकॉज ऑफ फॉल्ट्स or wrong coaching. Comment लिख के जरूर बताना. I hope this video is helping you. Thank you and may God bless you. Thank you very much.